नो प्रॉब्लम, जैसा भी हो कोई प्रॉब्लम नहीं है. आई थिंक आई शुड एक्सपेक्ट फ्रॉम यू गाइज. Okay. Distinction between price and value. What are the difference between price and value? The price may be understand as the amount of money or other consideration asked for a given in exchange for something else. The price is therefore an outcome of the transaction wherever the value may not be necessarily require the arrival of the transaction. The value exists even if some assets become unable to generate the cash flow today, but can generate in future on the happening of the some events. कभी क्या होता है कि अगर एक एग्जांपल है, ऑयल रिजर्व owned by the exploitation company may not have any value when the oil price say 70 per barrel and the extraction cost is oil 110. However, when the price reaches to 130 and is expected to prevail around the figure, it may be a significant value. Means अगर हमारी एक्सट्रैक्शन कॉस्ट ज़्यादा है, ठीक है, और वैल्यू कम है, लेकिन बाद में वैल्यू इंक्रीज हो रही है, तो प्राइस एंड वैल्यू में यही डिफरेंस है. वैल्यू बाद में भी चेंज एज पर द मार्केट कंडीशन. समटाइम आप देखते होंगे नियर मेट्रो स्टेशन किसी की अगर प्लॉट है या जमीन है, ठीक है, वो एक्सपेक्ट करते हैं इन फ्यूचर कि भाई आफ्टर 4 years यहाँ मेट्रो आएंगे. अभी इनिशियली उनकी वैल्यू बहुत कम होती है, लेकिन वो फ्यूचर को देखते हुए क्या होता है, आफ्टर 4 years मेट्रो पास हो गई है, आप मेट्रो आएंगे 4 years के बाद, यहाँ की प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ेगी. That is the difference. Price may be understand as the amount of money the other consideration asked for a given exchange for a something else. That's it. Any question? What is the purpose of the business valuation? Why? What are the purpose of business valuation? हम क्यों, क्या पर्पस क्या होता है बिजनेस वैल्यूएशन का? हम लोग जब वैल्यूएशन करते हैं किसी भी कंपनी की या कोई भी बिजनेस हम जब हायर करते हैं, जब खरीदते हैं बिफोर, तो क्या करते हैं हम लोग, वैल्यूएशन ऑफ ट्रांजेक्शन देखते हैं कि क्या परचेज सेल ऑफ द एंटिटी है, उसने किसने को परचेज किया, क्या सेल किया. एक्चुअली ईच एंड एवरीथिंग बिफोर इन्वेस्टिंग टू एनी कंपनी, वी आर लुकिंग फॉर दैट कि क्या ट्रांजेक्शन है उनके, मतलब कोई फ्रॉड तो नहीं है. वी आर टेकिंग केयर ऑफ दिस. सेकेंड है वैल्यूएशन ऑफ कोर्ट केसेस. वी हैव टू कंसिडर बैंकक्रप्ट. हम लोगों ने परचेज कर लिया, फिर बाद में पता चलता है बैंकक्रप्ट है वो कंपनी, ठीक है, कॉन्ट्रेक्चुअल डिस्प्यूट्स है, ओनरशिप डिस्प्यूट्स है. तो ये चीज हमें खरीदने के पहले बिफोर परचेजिंग यू हैव टू विजुअलाइज ईच एंड एवरीथिंग बिफोर इन्वेस्टिंग, because it is not easy to invest for every person. So before investing in anything we have to consider for this. Valuation of compliances. फेयर वैल्यू अकॉर्डिंगली टैक्स, कोई टैक्स इशू तो नहीं है, कोई कंप्लायंसेस इशू तो नहीं है. वी हैव टू थिंक अबाउट दैट. वैल्यूएशन फॉर प्लानिंग. पर्सनल, we have to think about the financial planning, strategic planning for this. We have to check it and everything for valuation. This question can arise for 2 or 3 marks. What are the purpose of the business valuation? 2 or 3 marks question asked. And I will also tell you how to write in the exam so that you can easily score in the exam. Suppose in the 4 to 5 marks question, how you will write? Anyone? Suppose you have got the 4 to 5 question marks, then how you will write? First, to mention the point, 4 5 point whatever you have, 4.5 you have mentioned, and after that
you have to uh, by the use of pencil you have to circle on that point. After that you have to describe each and everything. Then the examiner in the initial 4 steps you will check and get the marks. After that you will proceed for that. So this is the type of the writing in exam, because it is very specific to the exam point of view. You have to mention point wise. After that you have to describe each and everything. What are the key areas for the evaluation? Major area of decision making where the evaluation plays a key role. Anyone can suggest, because you have already you have read about that. Then you have to think about that. What are the key areas of the evaluation? Major area of decision making where evaluation plays a key role. That is valuation of equity shares, private placement of equity shares, corporate restructuring and turnaround, securitization and debt instrument, portfolio management, mutual fund. These are the key areas of the valuation, major area of decision making where the valuation play a key role. Portfolio management, we have to check the portfolio management, mutual fund, long-term and short-term investment decision, dividend decision and buyback of shares. These are the points you have to consider. You have to write financial risk management decision. If you think about that, what are the key area of valuation, major area of decision making where the valuation play a key role, then we can proceed for the same financial risk management decision, court case related decision, tax related valuation including transfer pricing, development project valuation. These are the things we considered before the valuation plays a key role. Forensic accounting and financial fraud. If any fraud is there, then we have to check before investing in anything. अगर आप आज किसी भी चीज़ में आप इन्वेस्ट करते हो, किसी भी चीज़ में आप इन्वेस्ट करते हो, तो बिफोर इन्वेस्टिंग आप ईच एंड एवरीथिंग चेक करते हो. अगर आप कुछ शॉपिंग भी करते हो, आज आप शॉपिंग करते हो, तो आप ईच एंड एवरीथिंग देखते हो कि क्वालिटी क्या है, ब्रांड क्या है, क्या प्राइस में है. ये एक जगह नहीं देखते, आप सारी साइटों में चेक करते हो. इनिशियली आप शॉप में भी देखते हो. बहुत लोग क्या है, कोड भी चेक करते हैं कि सेम ब्रांड सेम कोड, अब जहाँ पे सस्ता होगा वहाँ पे लेते हैं. तो ईच एंड एवरीथिंग बिफोर, अगर आप ये पॉइंट अगर सोच के अगर आप कुछ भी इन्वेस्ट करोगे अपने लाइफ में, ये बिजनेस की बात नहीं है, चाहे कुछ भी हो, आप सारे चीज कंपेयर करके अगर स्टेप लोगे, अगर आप खुद से ये पॉइंट होके सोचोगे, तो बुक की भी जरूरत नहीं पड़ेगी. आप ऑटोमेटिकली आपके पास पॉइंट्स आते जाएंगे कि क्या क्या पॉइंट्स कवर होने हैं. ये सारे पॉइंट्स ऑटोमेटिकली आएंगे आपके पास. Dissolution of firm, insurance product valuation, corporate planning, property valuation, value-based performance measurement, credit rating, fairness and solvency opinion, charitable donation. And second part, second part, this question may arise in the exam. Principles and technique of the valuation. What are the principles and technique of valuation? Anyone can tell me? Anyone? See, guys, we can discuss. This is a chapter. This is a theory chapter. While discussing, it will be easy for me also to discuss the same, because one way teaching, I think this is a revision time, you can say. So you have to participate in the same. Kishan Kesri, are you audible? Chetan,
Are you audible? Then unmute the same, no? No problem. Yes, Kishan? sir. If you have a discussion, then it will be easy for you itself. Because आपने अभी क्या अभी दिसंबर में कब से एग्जाम है? 10 तारीख से है ना? Yes, sir. 10 तारीख से है। तो अभी क्या कितने % कवर हो गए हैं सिलेबस? सर अभी तो 50 के अराउंड ही चल रहा है, 50-60%। अच्छा, अभी 50-60% ही करना है क्या? लाइक सर अभी क्या है कि हाँ, SPM कंप्लीट कराया है, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। ओके। स्ट्रेटेजिक परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, इसका हाँ हाँ। पिछले वाले ही। वो ओके, तो कवर हो गया है काफी। ठीक है। बिजनेस देन वैल्यूएशन ये अभी कवर नहीं हुआ है। वैल्यूएशन कवर नहीं हो पाया है क्योंकि बोर्ड ग्रुप है ना, हाँ हाँ। इसीलिए सर। ओके। और तो पहले पढ़ा भी नहीं था ये, ओके। पहले तो इंटर में था भी नहीं ना वैल्यूएशन। हाँ, इंटर में नहीं था, राइट। तो यस सर, इसलिए अभी इस अभी वजह आप से थोड़ा अब अच्छा, अभी आप लोग थोड़ा भी कवर नहीं किए हो। मैं सर इसलिए थोड़ा बहुत बेसिक बेसिक ही पढ़ा था बस, अच्छा, इसलिए मैं थोड़े कम्युनिकेट क्लास। करना चाह ओके, इसलिए मैं कम्युनिकेट करना चाह रहा था आप लोग से कि एटलीस्ट आई एम टेकिंग फर्स्ट टाइम क्लास, तो इफ आई नो व्हाट इज द सिचुएशन ऑफ द सिलेबस राइट नाउ, आप क्या पढ़े हो नहीं पढ़े हो, क्योंकि क्या है, अभी पेपर आपका दिसंबर 10 से स्टार्ट हो जाएगा आई थिंक, है ना? तो फिर कैसे पढ़ना है, फिर मैं हेल्प करूंगा आप लोगों को कि कैसे पढ़ना है, कैसे क्रैक करना है एग्जाम, आपको क्या क्या पढ़ना है जो इम्पोर्टेंट है अभी वो पढ़ना है, राइट? यस सर। तो अभी ये चैप्टर में अगर मैं बात करूं तो इस चैप्टर में आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन आता है, ठीक है, और सब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन आता है 3-4 मार्क्स। और मैं ये चीज बता दूं आपको, जो एग्जाम है अभी, आप जो बुक फॉलो कर रहे हो आप वही करना। और बेस्ट पार्ट ये है कि आप मॉड्यूल फॉलो करना, मॉड्यूल स्किप मत करना आप लोग कोई भी। अगर आप लोग को तो पता होगा, लेकिन मॉड्यूल स्किप मत करना आप लोग, मॉड्यूल एकदम कवर करना, 100% करना। और मेरे को लगता है अगर आप मॉड्यूल कवर करोगे तो, और इससे अच्छी बात, आप क्या क्या कवर कर रहे हो? सर ओनली स्टडी मटेरियल कवर। ओनली स्टडी मटेरियल कर रहे हो ना, दैट्स ग्रेट। यस आप स्टडी, अगर स्टडी मटेरियल अगर कवर कर रहे हो तो 100% यू विल गेट द रिजल्ट इटसेल्फ। सर, अगर स्टडी सीधी सी मटेरियल बात है, सीधी सी बात है, इंस्टीट्यूट एग्जाम कंडक्ट कराता है तो स्टडी में अच्छे पढ़ना चाहिए। हाँ, एक्चुअली वही मैं जानना चाह रहा था, बहुत लोग क्या है स्टडी मटेरियल छोड़ के क्या करते हैं, सीए क्लासेस वगैरह में ज्वाइन कर लेते हैं, तो फिर उनको पता नहीं चलता है कि क्या पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे हैं, दैट्स इट। इसलिए यू आर गिविंग यस सर। फर्स्ट टाइम? यस सर। ओके, चेतन। यस सर। हाय चेतन, कैसी चल रही है प्रिपरेशन आपकी? सर मैं ही बात कर रहा था आपसे। तो किशान केसरी, ओके, ठीक है, आप बात करते हैं। एम आर शर्मा, यस सर। ओके, आपकी कैसी चल रही है प्रिपरेशन? हाँ, तो अभी तो ज़्यादा तेज नहीं चल रही, लेकिन ओके, अभी स्पीड अप करनी पड़ेगी। हाँ, तो क्योंकि अभी 1 महीने है ओवरऑल अगर आप देखो तो, और स्टडी मटेरियल वगैरह अच्छे से किया ना तो मतलब हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है ना? और ये चैप्टर अगर मैं बता रहा हूँ तो मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चंस आते हैं इससे। और आप लोग जी लास्ट ईयर क्वेश्चन भी देखना, मतलब 2016 से एटलीस्ट तो देखना आप लोग, यस यस सर, डेफिनेटली। 2016 से कंटिन्यू आप लोग देखना। और यस जो मैं बता रहा था कि कैसे एग्जाम में आपको, जैसे स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट है, आपको कैसे, ये सब थ्योरी सब्जेक्ट है, कैसे प्रेजेंट करना है आपको एग्जाम में। तो आपको जो पॉइंट्स मैं बताया है कि पॉइंट्स ये पॉइंट्स है, पहले आप पॉइंट्स कवर कर लो, फिर उसके बाद अपना एक्सप्लेन करो फिर नीचे क्या है। अगर पेंसिल से अगर आप ब्लॉक बनाते हो इट्स गुड, लेकिन वो लास्ट में करना है। जी जी।
ठीक है, ओके। शीतल मेनन, यस सर। आपका कैसा चल रहा है प्रिपरेशन? सर ये जो लेक्चर के टाइम अटेंड कर रही हूँ बस वही है, बाकी कुछ अच्छा, प्रिपरेशन नहीं है। पहले से कोई प्रिपेयर नहीं किया आपने? नहीं, दिस इज माय लास्ट अटेम्प्ट, ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट होगा सर। ओके ओके तो लेकिन मेरा प्रिपरेशन लास्ट टाइम भी जिस जो स्टडी लीव मिला था उसमें कुछ 10-12 दिन का ही हुआ है, सो इट्स एज गुड एज फ्रेश फॉर मी। ओके, नो प्रॉब्लम। अभी भी आपके पास 1 महीने 1.5 महीने हैं, तो यू हैव टू वर्क ऑन दैट यस so सर। that you will easily track out. यस ओके, अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मतलब डिस्कशन कर सकते हो, कोई देयर इज नो इशू विद दैट। थैंक यू सर। ओके, सुमेधा, ओके, ब्रह्मपा, both are not audible. Okay, no issues. Then next we are discussing the prince. हाँ, hi ब्रह्मपा, हेलो। हाँ हेलो सर। हाँ, कैसे चल रही है हेलो आपकी प्रिपरेशन? हाँ, हेलो, आई एम ऑडिबल? हेलो। हाँ हाँ, अच्छी चल रही है ना? ठीक हाँ है। यस सर यस सर। हाँ आप पार्ट एक्चुअली हाँ सामान्य चल रही। सामान्य चल रही है, ठीक है। अभी टाइम है, आप लोग थोड़ा सा मेहनत करोगे तो अभी दिसंबर में पेपर है, मे बी ओके क्लियर हो सर। जाए अच्छी है। ऑल द बेस्ट फॉर दैट। एंड आप लोग थोड़ा पार्टिसिपेट करो, अगर कॉल पे है ना तो थोड़ा सा पार्टिसिपेट करो। तो अगर नेक्स्ट जो क्लास होगा ना तो आप लोग मॉड्यूल साथ में रखना, सो डेट कि क्या है कि अगर मॉड्यूल साथ में रहेगा तो थोड़ा सा और इंटरेस्ट आएगा आप लोगों को पढ़ने में। मटेरियल साथ में रहेगा ना तो आप देख के थोड़ा सा पढ़ सकते हो। हेलो, सर मॉड्यूल है अभी भी साथ में। हाँ अच्छा, ठीक है मॉड्यूल सर। है ना, तो थोड़ा एक्चुअली क्या है ना, अगर कुछ भी बोलते हैं तो क्या, अगर मॉड्यूल साथ में है या कोई नोटबुक साथ में होता है, इट विल बी इजी फॉर अंडरस्टैंडिंग इटसेल्फ, है ना? तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वी विल डू दैट। एंड वी विल स्टार्ट अंडर द बेसिक्स ऑफ वैल्यूएशन, अंडर दैट प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक ऑफ वैल्यूएशन। आप लोग बताओ, क्या क्या प्रिंसिपल एंड टेक्निक होनी चाहिए वैल्यूएशन जब हम वैल्यूएशन करते हैं? ये दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, it will ask 2 or 3 marks, it may be, not confirm, it may be. Anyone? प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक ऑफ वैल्यूएशन आपको यहीं पे करने हैं। ये क्लासेस जो हो रहे हैं ना, आप समझ लो ये बस 1 ही घंटे हैं, 1.5 घंटे हैं, आपको इसी में करने हैं। हम लोग ऐसे ही करते थे क्लास। ये स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट और जो भी थ्योरी चैप्टर है, अगर आप लोग सोचोगे कि हम अकेले लेके बैठ के पढ़ ले, दिस इट इज वेरी टफ। अगर मैं इतना बोल रहा हूँ, कुछ रीजन से बोल रहा हूँ कि अगर डिस्कस करोगे तो आपको ध्यान रहेगा, अदरवाइज आप नहीं गेन कर सकते। तो सब साथ में बोलना है। आपके पास मॉड्यूल है सबके पास, देन व्हाट इज द प्रिंसिपल एंड टेक्निक ऑफ वैल्यूएशन? बताएं बताएं, मॉड्यूल है ना आपके पास ब्रह्मा? प्रिंसिपल ऑफ सब्स्टिट्यूशन लिखा है सर। यस, प्रिंसिपल ऑफ यस सर सब्स्टिट्यूशन। मॉड्यूल है। बिल्कुल, अभी हम लोग को ये जो चैप्टर, कोई भी चैप्टर मैं कराऊंगा तो सबको पार्टिसिपेट करना है। हम लोग बाद में कुछ नहीं पढ़ना है, अभी ऑन द स्पॉट पढ़ना है। क्योंकि अभी अगर आप पढ़ोगे, अगर अभी नहीं पार्टिसिपेट करोगे तो नहीं हो पाएगा। तो प्रिंसिपल पहले तो क्या है कि हम लोग जब वैल्यूएशन करते हैं, अगर आप खुद से सोचो हम लोग वैल्यूएशन क्यों करते हैं? सबको बोलना है, सबको पार्टिसिपेट करना है, थोड़ा थोड़ा सबको पार्टिसिपेट करना है। वैल्यूएशन हम लोग क्यों करते हैं? हम लोग छोड़ो किसी क्या, हम लोग खुद की वैल्यूएशन कैसे करते हैं? एवरीवन। स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। हाँ, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। चलो और आगे नेक्स्ट। मतलब सर मार्केट में हम कहाँ स्टैंड करते हैं। ठीक है, राइट, दैट्स गुड। नेक्स्ट, बोलो जो मन में आ रहा है सब बोलो, सब कुछ भी बोलो।
आई थिंक सोच के बोलो कि हम वैल्यूएशन हम लोग सबसे पहले तो वैल्यूएशन हम लोग क्यों करते हैं? मैंने तो बहुत अच्छा एग्जांपल दिया था आपको वैल्यूएशन का, प्रॉपर्टी का मैंने एग्जांपल दिया था ना कि वैल्यू कैसे बढ़ती है कैसे कम होती है। ठीक है, देखिए मैंने ये बोला था कि वैल्यू के बारे में, वैल्यू इज अ सब्जेक्टिव टर्म एज व्हाट अ स्पेसिफिक मेजर्ड वैल्यू वन पर्सन मे नॉट बी द सेम फॉर अदर। मैंने ये बोला था ना कि आप किसी एक दूसरे को, अगर आप लोग 6 महीने के बाद सीएमए हो जाते हो तो अभी जितने भी मेंबर है इट सबकी वैल्यू अलग है। सीएमए होने के बाद भी सबकी वैल्यू अलग होगी क्योंकि सबकी क्वालिटी थोड़ी थोड़ी अलग है। किसी का कौन सा सब्जेक्ट स्ट्रांग है, किसी का कोई सब्जेक्ट और स्ट्रांग है, राइट? तो सबका पॉइंट ऑफ व्यू भी अलग होता है। तो सबका क्या है, जब क्लियर एग्जाम हो जाता है फिर उसके बाद प्लेसमेंट होता है। प्लेसमेंट होने के बाद भी सबको इक्वल प्लेसमेंट नहीं होता है, किसी को बहुत ज्यादा होता है, किसी का, क्योंकि डिपेंड अपॉन नेचर, ये नेचर का है, ये कोई किसी का बाउंड नहीं है, राइट? कोई तो बोलो हाँ यस ना। सर, यस सर, हाँ सर, यस यस सर। सर। अरे पार्टिसिपेट करोगे तभी मजा आएगा। आप लोग सोचो, आप लोग भूल जाओ, हेजिटेशन एकदम दूर करो, क्योंकि मैं इतना कोई बोलेगा भी नहीं जितना मैं बोल रहा हूँ ना, इतना कोई नहीं बोलेगा, इतना पार्टिसिपेट करने के लिए कोई नहीं बोलेगा। मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग एग्जाम अटेम्प्ट दे रहे हो तो आप लोग क्लियर करो, ठीक है? अगर स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट हो, ये सब क्या है ना, मैं जब पढ़ता था, मैं मुझे याद है तो मैं किसी को बैठा के पढ़ाता था, मतलब क्योंकि ये सब्जेक्ट अकेले बहुत बोर होता है लिटरली। अगर मैं बोलूँ बिजनेस स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट ये थियरी सब्जेक्ट है, तो मैं क्या करता था ना, किसी को बैठा था, मैं 10 मिनट बैठे यार मैं तेरे को कुछ बताता हूँ, ठीक है? उससे क्या होता है ना तो खुद से दूसरे को पढ़ाता था मैं। तो अब स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में मार्क्स भी अच्छे आए, वैल्यूएशन में वैल्यू ये स्कोरिंग चैप्टर है। मैं तो बोलता हूँ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट मेरे मार्क्स बहुत अच्छे आए थे। बहुत लोग बोलते हैं, किसको किसको लगता है कि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट सही नहीं है? कोई नहीं बोलता सर। कोई नहीं बोलता ना, लेकिन मैं बोलता था उस समय। मैं बोलता था कि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट एक्चुअली इसलिए टफ होता है ना, मैं बताता हूँ इसका रीजन क्या है। आप लोग ना सोचते नहीं हो, जैसे बुक है ना, बुक से बस पढ़े और याद नहीं रहेगा ना। मैं अभी एक ही चीज बोल रहा हूँ, वैल्यूएशन वैल्यूएशन हमको खुद से लेना है, खुद का बिजनेस, खुद अपने जगह पॉइंट ऑफ व्यू अगर सोचोगे ना तो इट विल बी वेरी इजी चैप्टर, वेरी इजी, बहुत मजा आएगा बहुत ज्यादा, क्योंकि इसमें बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू है। आप जितना घुसोगे इसके अंदर ना, आपको उतना अच्छा लगेगा क्योंकि यहाँ पे बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू की बात होती है कि हम अगर पढ़ तो लिए भाई प्रिंसिपल क्या है, ठीक है पढ़ लिए, लेकिन हम कुछ समझे नहीं, क्योंकि हम वैल्यूएशन कर रहे हैं। वैल्यूएशन कर रहे हैं तो प्रिंसिपल क्या है भाई, इसकी क्या टेक्निक हो सकती है जब हम वैल्यूएशन करते हैं तो। जब क्या सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है? अगर हम लोग नॉर्मल वे में बोले तो सब्स्टिट्यूट मतलब क्या, एक और ऑप्शन। यस सर। तो हमें इस तरह से पढ़ना है। एक बार टाइम लगेगा आप लोग को, एक बार ऐसे सोचने में टाइम लगेगा, लेकिन सेकंड टाइम नहीं लगेगा। अगर आप नॉर्मली अगर ऐसे पढ़ोगे ना तो फिर तो टाइम ही टाइम में फिर भूलते जाओगे। तो कुछ भी है ये सब सब्जेक्ट ना थोड़ा सा आपको थोड़ा सा ध्यान दोगे तो हो जाएगा, ठीक है? अच्छा, बायस का मीनिंग क्या होता है, कौन बताएगा? सुमेधा? Okay, no issue. Anyone? सर partiality। Right, right, very correct. तो बायस का मतलब क्या होता है? अनफेयर, पार्शियलिटी, राइट। अब बायस का क्या है, अब ऐसे हमें पढ़ना होता है कि बायस में पहले हमें पता नहीं होता कि बायस मीन्स क्या होता है। हम लोग क्या करते हैं, बस पढ़ते जाते हैं। अगर आप ऐसे करोगे ना, मतलब हर एक कोई भी टॉपिक है उसको ब्रेक करके पढ़ो कि भाई बायस का मीनिंग क्या है, पार्शियलिटी। तो पार्शियलिटी मतलब क्या, पार्शियलिटी अगर हम वैल्यूएशन कर रहे हैं तो उसमें पार्शियलिटी हो रही है। कौन कर रहा है पार्शियलिटी?
जो खरीद बिक्री कर रहा है, जो ब्रोकर है वो कर रहा है। तो ऐसे पढ़ेंगे ना, इट विल बी वेरी इजी सब्जेक्ट। अगर आप रिवाइज भी नहीं करोगे एग्जाम में ना, तो जाके कुछ ना कुछ लिख के आओगे। 4 मार्क्स का है, 2 मार्क्स मिलेगा, 2.5 मिलेगा। वो वेट नहीं करेगा आपकी कि आप रिवाइज नहीं किए तो आप लिख नहीं पाए, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ओके, तो what is the process to minimize the valuation bias? अगर मैं बोलूं कि बायस मतलब हो गया पार्शियलिटी, ठीक है। तो हमें क्या करना है, प्रोसेस टू मिनिमाइज द जो वैल्यूएशन हो रही है, ठीक है, उसमें पार्शियलिटी ना हो। मतलब एक लैंड है, ठीक है, उसकी वैल्यू अगर मैं बोलता हूँ शीतल मेनन को कि इस वैल्यू की, उसको पता है, सबको पता है, हमारे जितने मेंबर हैं सबको पता है कि जो वो लैंड है वो से 1 CR का, 1 करोड़ का है, ठीक है। लेकिन मैंने क्या बोला शीतल मेनन को कि आई विल गिव असाइड 10% कमीशन। ओके, तो क्या हो गया शीतल मेनन, तो कम प्राइस ये मिलेगा टू द एक्सटेंड ऑफ 10%। हाँ, तो शीतल मेनन ने क्या किया, हमने उनको 10% कमीशन देके अब उसको बोला कि आप इसकी वैल्यू बताओ कितनी, 80 लाख, ठीक है। तो बाकी जो मेंबर है उनको क्या पता चला कि 80 लाख का है, लेकिन एक्चुअल कितना है, 1 करोड़। और मैंने शीतल मेनन को कितना दिया, 10 लाख। 1 करोड़ का 10% 10 लाख। तो मैं कितना बेनिफिट में रहा, 10 लाख। तो ये बायस हुआ ना, ये पार्शियलिटी हुआ ना सब मेंबर के साथ। ब्रह्मपा, चेतन, किशन, शर्मा, मिलन, ये सब के साथ पार्शियलिटी हो गया ना। समझे, सब समझे। तो ऐसे हमें पढ़ना है, व्हाट इज द प्रोसेस टू मिनिमाइज द वैल्यूएशन बायस। तो फर्स्ट पॉइंट क्या होगा, रिड्यूस द इंस्टीट्यूशनल प्रेशर। आप ये रिड्यूस द इंस्टीट्यूशनल प्रेशर, कभी कभी क्या होता है, मैंने तो आपको ऑफर किया कि भाई मैं आपको 10% दूंगा, तो आप क्या करना कि थोड़ा वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी कम करके बोलना। मैं आपको बोलूंगा आई विल शूट यू, तो आप प्रेशर में आ गए कि नहीं, ये मुझे डर है कि मुझे ये कोई मार देगा, तो मैं प्रेशर में आके उसकी प्राइस कम कर दिया, ठीक है। तो आप समझ रहे हो ना कि रिड्यूस इंस्टीट्यूशनल प्रेशर, डीलिंक वैल्यूएशन फ्रॉम द रिवार्ड पनिशमेंट। देखो सेकंड पॉइंट आया, अगर आप लोग मॉड्यूल देख रहे होंगे तो सेकंड पॉइंट क्या है, डीलिंक वैल्यूएशन फ्रॉम रिवार्ड एंड पनिशमेंट। या तो मैंने क्या किया, रिवार्ड दिया 10% या पनिशमेंट दिया कि भाई अगर आप इतना रेट नहीं बोलोगे तो आई विल शूट यू। ओके, समझ में आ रहा है किसी को कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो यू कैन रेज। ओके, इट विल कंसीडर। ओके, एंड नो प्री कमिटमेंट। हम कमिटमेंट कर देते हैं किसी को कि भाई ऐसा है, मैंने पहले कमिट कर दिया है कि इतना में भेजना है और मेरी कमिटमेंट 100% ओके होती है, लेकिन जब बाद में वैल्यूएशन हो रहा है तो पता चल रहा है कि वैल्यू इंक्रीज हो गई। और वैल्यूएशन जब होता है एट ए टाइम, उसी टाइम हम कंसिडर करते हैं जिस टाइम हम वैल्यूएशन करते हैं। और हमने कमिटमेंट कब की, पहले की। तो जब पहले कमिटमेंट कर दिया तो फिर दैट्स यूजलेस, क्योंकि कमिटमेंट की बात हो जाती है, तब तो हमें प्राइस रिड्यूस करके बोलना पड़ेगा सबके सामने, ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है, नेक्स्ट पॉइंट कोई बोलो, नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा किशन। एनीवन अगर आप लोग मॉड्यूल देख रहे होंगे तो। सेल्फ अवेयरनेस। यस राइट, सेल्फ अवेयरनेस। हम लोग को खुद से सेल्फ अवेयरनेस होती है। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सब इन इंडिया हम लोग क्या करते हैं कि भाई सब कुछ गवर्नमेंट पे ब्लेम कर देते हैं, ठीक है, कि यहाँ पे ऐसा है, यहाँ पे क्लीननेस नहीं है। अगर हम लोग क्या करते हैं, चॉकलेट का रैपर लेके रोड पे फेंक देते हैं या फिर जो भी रीजन हो, तो क्या है, इसके लिए सबसे पहले हमें सेल्फ अवेयरनेस होना चाहिए कि नहीं, मुझे पार्शियलिटी नहीं करनी चाहिए। राइट मिस्टर शर्मा। हमें सेल्फ अवेयरनेस होनी चाहिए। ओके, सेकेंड लास्ट क्या है, ऑनेस्ट रिपोर्टिंग। This is also the part of the self awareness and commitment itself. If we do the final reporting, then we are do the correct way and fairness way. This way
this may become to process to minimize the valuation bias count in 2 or 3 marks can ask. अब आपको अब समझ में आया ये क्या होता है प्रोसेस टू मिनिमाइज द वैल्यूएशन बायस. अब वैल्यूएशन बायस से कोई क्वेश्चन आएगा तो आई डोंट थिंक सो कि कोई नहीं लिख पाए. ऐसा कोई है क्या? आई थिंक सब लिख देंगे. बायस का अगर मीनिंग हो गया फिर वैल्यूएशन ऐड हो गया तो हमें इस तरह से सारा कुछ इसमें मेंशन कर देना है. आप एक चीज ध्यान देना, कोई भी क्वेश्चन हो, ठीक है, अगर आपको आंसर नहीं आ रहा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, अगर कोई क्वेश्चन ऐसा है जो आपको नहीं आ रहा है, ठीक है, इट विल कवर एट द लास्ट में हम उसको अटेम्प्ट करेंगे और ऐसे अटेम्प्ट करेंगे कि एग्जामिनर कंफ्यूज हो जाए. कैसे कंफ्यूज होगा? आपको लिखना ऐसे है कि आप पहले पॉइंट समझ लेना क्या है. बायस पार्शियलिटी हो गया, उसका वैल्यूएशन करना है तो हमें क्या करना है, पॉइंट वाइज सोचो, पॉइंट वाइज सोच के कॉलम बनाओ, ठीक है, उसके बाद एक्सप्लेन करो. नहीं भी तो 4 मार्क्स का है तो एटलीस्ट 2-3 मार्क्स ही विल गिव. ओके. अच्छा, मिसकंसेप्शन क्या है हमारा? व्हाट आर द मिसकंसेप्शन अबाउट द वैल्यूएशन? जब हम वैल्यूएशन करते हैं तो हमारा क्या मिसकंसेप्शन है? सारे एक एक पॉइंट पढ़ के बताएंगे मुझे, सब कोई बताएगा एक एक पॉइंट, स्टार्टिंग फ्रॉम इटसेल्फ. ब्रह्मा. There are many areas in valuation where remains the scope of disagreement, including how to estimate true value and how long it will take price to adjust to true value. But asset prices cannot be justified merely by using the argument that other investors are willing to pay higher price in future. Like all analytical disciplines, valuation has developed its own myths. So, what are the misconception about the value? ठीक है. ये कह रहा है कि हम इस बात को लेके जस्टिफाई नहीं कर सकते कि भाई फ्यूचर में इसका वो इतना वैल्यू देगा, इतना प्रेजेंट पे ही देखना चाहिएगा और जो डेवलप हो जाते हैं उनसे दूर रहना होगा. हाँ, राइट, गुड. ऐसे हमें डिस्कस करके पढ़ने हैं. सेकंड पॉइंट चेतन आपके पास है? यस सर. Myth number 1. Myth number 1, valuation is an objective search for true value. Valuation मतलब कराया इसलिए जाता है कि जिसकी स्टैंडर्ड वैल्यू है, उसकी ट्रू वैल्यू है, वो मालूम हो सके. बिल्कुल राइट है. And this is directly proportional to who pays for the assets being valued and how much professional fee is being paid to the valuer. Yes sir. Okay. Third point, किसान केसरी. आप लोग का डिस्कशन में कॉल पे इसी पे करवा दूंगा अगर आप लोग इंटरेस्ट हो. अगर आप लोग को एंजॉय कर रहे हो क्लासेस या फिर मजा नहीं आ रहा? ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट, since valuation models are quantitative, valuation is better. नेक्स्ट पढ़िए मिस्टर शर्मा. Where one setting of a valuation model is inversely required. However, valuation model workouts then it seems making a model complete and better solution, but it is not. So okay. Milan, you will read myth 4. Milan, you have
book? No problem, I will read. A good valuation provides a precise estimate of value. If we value good valuation, एक्चुअल एस्टिमेट ऑफ वैल्यू, अगर हम प्रॉपर वैल्यूएशन अगर होती है विदाउट प्री कमिटमेंट्स और पनिशमेंट और रिवार्ड और एनी प्रेशर, देन इट विल प्रिसाइज एस्टिमेट टू द ट्रू वैल्यू. Myth 5. Who one read? Chital Menon. Yes, sir. Myth 5. Can you read? Yes, sir. To make money on valuation, you have to assume that markets are inefficient. Right. सर उसका ये भी पढ़ना है क्या पैरा? अगर आपको समझ में आ गया है, एनीवन एक पैरा पढ़ लो. It will be understand to everyone. Okay, sir. If a market is efficient, then market price is the best estimate of value. However, it has been empirically tested that no single market is efficient for estimating price. It is recognized that market makes mistakes, but finding those mistakes requires a combination of skill and knowledge. This view of markets generally leads to the following conclusions. If something looks good to be true, a stock looks obviously undervalued. Point number 7 myth. How much a business is worth depend on what the valuation is used for. Standard of value. Point next, standard of value. What is the standard of value? It means allow all the merchant and economic entities to set the uniform prices of the goods and service. This standard is necessary in order to maintain a stable economy. Then 5 most common standard of value. Anyone can tell them? 5 most common standard of value. First one is fair market value. Fair market value, in simple sense, we can say fair market value is the price that the assets would sell for on the open market. Any assets we can sell for the open market, the price it is fixed. Fair market value has come to represent the price of an assets under the following usual set of condition. Under that, prospective buyer and seller are reasonably knowledgeable about the assets belong in their own base of interest, free of undue pressure to the trade, and given reasonable time period for the completing the transaction. It means fair market value. It is fair. It means fair to the customer and seller itself. That's it. Fair market value is the price that the asset would sell for the open market. Second one is investment value. Under that investment value, investors specific knowledge about the business. Anyone, if we invest in the any business, then we have to knowledge about the business. Okay, own capabilities and expectation of risk and return. What are the risks may be involved in if anyone invests in any business, then we have to think about that. What are the price to the investment? What are the price and what are the capabilities and what are the expectation of risk and return and other associated factors synergy like consider in the specific purchaser. जब हम कुछ इन्वेस्ट करते हैं, दैट्स इट, मैंने आपको पहले ही बताया है, अगर हम कोई बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है,
तो एक तो उसकी नॉलेज होनी चाहिए हमें। ये नहीं कि बिजनेस हम अगर परचेज कर रहे हैं या कुछ भी बिजनेस अगर कहीं भी हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, अगर आप, मैंने फिर से आपको एग्जांपल बताता हूँ, अगर आप कुछ चीज परचेज भी करते हो, आज आप ऑनलाइन परचेज करते हो तो आप 5 टाइम्स ईच एंड एवरी साइट में देख के परचेज करते हो, चाहे वो 100 रुपए की चीज हो। ये तो इन्वेस्टमेंट की बात है, वो तो परचेज की, नॉर्मल परचेज की बात कर रहा था। अब ये इन्वेस्टमेंट की बात है, अगर आप इन्वेस्ट करोगे, इन्वेस्ट क्यों करोगे, हमें समथिंग इट टू बी रिटर्न बैक, ठीक है। तो उसमें क्या रिस्क है हमें वो भी कंसीडर करना पड़ेगा, हम वो भी देखेंगे। अगर मैं कहीं इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो उसमें क्या रिस्क आ सकती है, कितने कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट लगेंगे, ठीक है, और क्या क्या कैपेबिलिटीज हो सकती है, क्या क्या फैक्टर कंसीडर होते हैं, ये सारी चीजें हमें देखनी पड़ेगी। Then we have to come to the analysis part. For the reason, investment value may result in higher value than fair market value. Third point is that intrinsic value or fundamental value. Anyone have any problem in that, in fair market value or investment value? I think Mr. Sharma, Kesari, in investment value, if you have any problem, investment हमें कैसे invest करनी चाहिए, क्या क्या expectation, क्या क्या risk? हेलो, नो सर, इट्स क्लियर सर। क्लियर ना? क्योंकि जब हम इन्वेस्ट करते हैं, मैंने आपको पहले ही बोला, कहीं भी अगर इन्वेस्ट करते हैं तो हमें सारी पॉइंट कवर अप करने पड़ेंगे, क्या रिस्क है, ठीक है, वहां पे क्या रिटर्न आना है, ठीक है, और भी जो भी फैक्टर्स है, सारे पॉलिटिकल फैक्टर, सारे फैक्टर्स कंसीडर करने के बाद हम फाइनल डिसीजन मिलेंगे कि हमें यहाँ इन्वेस्ट करना सही है। Third point is that intrinsic value or fundamental value calculates on simplified assumption. For example, intrinsic value of an option is based on the current market value of the underlying instrument, ignoring the possibility of future fluctuation and the time value of money. Intrinsic value क्या होता है? हम current situation को देखते हैं, हम फ्यूचर फ्लक्चुएशन पे हम बिलीव नहीं करते, हम टाइम ऑफ वैल्यू नहीं करते, हम करंट मार्केट देखते हैं, करंट मार्केट ऑफ वैल्यू क्या होगा, उसके बेस पे हम इंट्रिंसिक वैल्यू और फंडामेंटल वैल्यू निकालते हैं। फोर्थ पॉइंट इज दैट फेयर वैल्यू। फेयर वैल्यू इज a standard of value, you can say, understand differently in the two situation mentioned below, in the legal matter, in the financial reporting purpose itself. Okay, and the last is the market value. Market value is the estimated amount of which the property should exchange on the date of the valuation between a willing buyer and a willing seller in an arm length transaction, after, you can say, proper marketing, wherein the parties had each acted knowingly, prudentially, and without any compulsion. So these are if you say standard value, 5 most common standard value. Okay, this question may be asked in the examination. What are the five most common standard value? It may be come around 3 to 4 marks subjective type of question. It may be around. So can you explain, Mr. Milan or Mr. Sital Menon, Sumedha, 5 most common standard of value? First one is, tell me, first one. So fair market value. Right, first fair market value. In this simple sense, we can say fair market value is the price assets would sell for open market. Okay. Second one, investment value. Second one, investment value. Kishan Kesari, Chetan. Intrinsic value, third one. हाँ, third one intrinsic value or fundamental value. Fourth one is fair value and 5 one is market value. और आपको in the exam point view कैसे लिखना है, आप 5 point
first mention karna. After that, you have to explain each and everything. Okay. So initially we can once again in 5 minutes we can capture what the things is that in the first business valuation basics chapter, it will cover 3 to 4 marks objective type of question, or it may be more that, and subjective type of question also 3 to 4 marks you have to cover in this. So in again, if we take 10 minutes to revise or what you have read today, then what is the business valuation? Anyone? And why we need for that? Anyone? Brampa? Business valuation? Brampa? It's okay. Business valuation is no precise science. There is no universal legal framework which dictate how the valuation should be performed. It is very important chapter for exam point of view, you can say, theoretical point of view, you can say, because each and every exam it will cover objective type of question itself. So you have to consider that after completing this chapter, we will cover also objective type of question also. I will dictate each and everything so that you can it will benefit to the exam itself. So there is one question. Mm-hmm. Sir, yeah, in Alok Industries, when Reliance and one more company, GM Info, have purchased that 37% stake in Alok Industries, then what are the basis for valuation of Alok Industries? Because उस टाइम पे तो उसका 30,000 करोड़ का तो डेप्थ था, लगभग ऐसा Mm-hmm. कोई फिगर मतलब ये पब्लिश हुआ था उस टाइम पे पेपर पे. बट उस टाइम पे वो Mm-hmm. वैल्यू कैसे किए थे उसका? वो तो बाद में बैंक को ये नुकसान, वो सेटलमेंट ये कम में सेटल करके उसके बाद वो अभी फिर से रन कर रहे हैं अपना बिजनेस को. तो उस केस में हाँ, वैल्यूएशन कैसे, मतलब वो अंडर वैल्यू कैसे किए, मतलब उसको देखो मतलब it तो depends वो upon the मुझे it depends upon the both the owners. It depends upon both the owners. Suppose मैं आपसे कोई डील करता हूँ, ठीक है, अगर आपकी फर्म डेप्ट में है या फिर प्लस में है, वट एवर, अगर गुडविल में है इट्स ओके, डेप्ट में है इट्स ओके. अगर आपकी डेप्ट में है 50% आपकी फर्म डेप्ट में है, फिर भी मुझे कुछ पॉजिटिव दिख रहा है आप में, फिर भी मुझे आप में कुछ पॉजिटिव दिख रहा है कि आप जिस एंगल से चला रहे थे आप नहीं चला पा रहे हो, सो दैट आई विल बाय फॉर दैट, एंड मेरा कुछ कंसेप्शन कुछ और है, ठीक है, मैं आपसे परचेज करके मैं अपने अकॉर्डिंग हैंडल करूंगा. it will typically depend upon the both the owners of the company कि आप जैसे चाहो. अगर आप 50% है, आप तो इजी, आप तो आराम से दे दोगे ना मुझे, अगर मुझे लेने हैं कुछ भी चीज, अगर आप समझ रहे हो आप नहीं चला पा रहे हो, आप डेप्थ में हो, अगर मैं ले रहा हूँ तो मेरे लिए रिस्क है, बट मेरे को उसमें कुछ बेनिफिट लग रहा है, दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग. ओके, इट डिपेंड्स अपॉन द both the parties, and it article is financial risk management, this court case related decision, tax related valuation, it will cover, सारा कुछ cover होगा. development project valuation, forensic accounting, financial fraud, सारा कुछ ये सब cover up होगा. सब कुछ ये पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग, सारा कुछ ये सब कुछ मतलब चेक करेंगे. ऐसा नहीं है कि मतलब ठीक है डेप्थ में है इट मीन्स ओके, लेकिन सारा कुछ चेक करके कुछ भी बेनिफिट होगा तभी लेंगे. हम ऐसे नहीं बोल सकते कि डेप में है तो वो क्यों लिया, उनको उसमें बेनिफिट होगा उसमें इसलिए ले लिया. हालांकि सारे पॉइंट्स कवर होते हैं, सारे वैल्यूएशन के जितने भी हैं सब कुछ कवर होके सारा तभी लेते हैं. एनी मोर? नो सर. ओके, once again I will repeat the same purpose of business valuation. This will also important for that. What are the purpose of the business valuation? There are 4 purpose of business valuation. Valuation of the transaction, under that we have to check the purchase and sale of the entity and each and every transaction while we will purchase. Okay, second one is that valuation of the court cases.
इफ वी बैंकक्रप्ट ऑफ सम कंपनी, आपके पॉइंट यहाँ आ गए हैं, ठीक है। अगर बैंकक्रप्ट हो, मिस्टर शर्मा, यू हैव आस्क्ड दिस क्वेश्चन ना? No, sir. Sir, I have asked Kishan. Kishan, right? Very good question, Kishan. And suppose any court cases, अगर suppose अगर आप किसी भी कंपनी अगर आप लेते हो, ठीक है, कोई बिजनेस अगर आप सोच रहे हो एक्वायर करने का, ठीक है, उसमें आप जब पर्पस ऑफ बिजनेस वैल्यूएशन अगर आप पढ़ोगे, ठीक है, तो सेकंड पॉइंट क्या है, वैल्यूएशन ऑफ कोर्ट केसेस। आपको पता है कि इसका डिस्प्यूट है, किसी किसी का डिस्प्यूट चल रहा है, और आपको ये भी पता है कि ये डिस्प्यूट में इतने पैसे लगेंगे, ठीक है, तो वो क्या होता है, हम लोग कंसीडर करते हैं कि ठीक है, अगर 10 लाख रुपीज लगेगा, ये डिस्प्यूट सेटल होगा, दैट्स इट, तो उसका हमें रिकवर मिल रहा है, फिर परचेज करने में क्या प्रॉब्लम है। लेकिन हाँ, आपको पता होना चाहिए कि ये डिस्प्यूट केसेस है, इसमें मेरे को अगर हम लोग खरीद लिए, कुछ बिजनेस हम लोग बाय कर लिए, अगर बाद में पता चल रहा है कि भाई ये डिस्प्यूट में इतना कैसे, तो वो एडिशनल एक्सपेंस हो गया ना हमारा, Yes, है sir. ना। हाँ, वो एडिशनल एक्सपेंस हो गया, तो बेटर वे हम लोग, इसलिए हम लोग ये वैल्यूएशन भी पढ़ते हैं कि एटलीस्ट हमें ये चीज क्लियरिटी हो कि क्या क्या हम लोग कंसिडर करेंगे, क्या क्या नहीं करेंगे। Okay, sir. Okay, third one is that the valuation of compliances. Already I have told a compliances, tax issues, accounting, fair value, is it that? सबके पास मॉड्यूल है, आप लोग के पास अभी Yes, sir. सबके पास है ना? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Then in this chapter, I will discuss the question. First one is that, anyone tell me one by one, okay? First one is, valuation is not an objective exercise, and any preconception and bias that an analyst bring to the process will find their way into value. Anyone can tell? True or false? So it's a true statement. True statement. Which one is Kishan? Yes, sir. Okay. Give chance to the other itself, Kishan. Okay. Sure, sir. The second point is, second question is that the value may be defined as the amount of money or other consideration asked for a given in exchange for something else. True or false? This type of question may ask in the exam. Okay. Objective types. It is false, sir. Because, Right. because exchange, anything is given, it is a price, not the value. Right. Second one is false. False. Right. Third question is that discounted cash flow valuation relates to the value of an asset to the present value of expected future cash flow on that assets. True, sir. Who will tell? Mr. Sharma, आपने Yes, बोला? sir, it is true, sir. Okay, that's great. And you can also participate, Sital, Sumedha, Milan. It will be easy for you. Next question is, one of the consequences of efficient market hypothesis is that the market will always have equilibrium price of the company shares as defined by the fundamentals. Anyone? This is false. Next question. The method of capitalization of earnings for valuation of a business assumes constant earning of infinite time. Anyone? The method of capitalization of earning for valuation of a business assume constant earning for infinite of time. Milan, Chetan. True, sir. Very good. Very good.
एक्चुअली सर फोर्थ प्लीज दोबारा बताएंगे क्या? फोर्थ पॉइंट थोड़ा सा व्हाई इट इज फॉल्स. Okay. Fourth point is actually this topic I have not covered right now. Efficient market hypothesis. If you see, I have not covered in this right now because in the next chapter we will cover in long way. Yes, sir. Okay, sir. Okay, this is very important point, efficient market hypothesis, because in this point you will cover the calculation part itself. Is it pertaining to perfect market conditions? Huh. Efficient. Next one, 6. The value of a firm equity is equal to the value of the firm less the value of non-equity claims. The value of a firm equity is equal to the value of the firm less the value of non-equity claims. True. Hello? Right Yes, now? sir. Okay. Next point is that point estimation of the value of a business is only the right way to determine its value. Point estimation of value of a business is only way to determine its value. Wrong. एक point से हम कैसे determine कर सकते हैं? Number of points are there for that. Okay. Next one is that a lower discount would be applied to the cash flow of the government bonds as compared to shares of the company. A lower discount would be applied to the cash flow of the government bonds as compared to the shares of the company. This one is right. Government bonds कम होते हैं. Here, less rate of it. हाँ, right. This type of question each and every exam will ask, and it is very easy. This type of question we will score 100% marks. अगर आप इसमें तो गलती मत करना, क्योंकि ये 100% मार्क्स है, इसमें आपको कोई कंप्रोमाइज, ये पासिंग के लिए बहुत हेल्पफुल है. ये ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चंस एंड somehow very important for that. Book next one, book value is an accounting concept and implies historical assets less outside liabilities. It's true. And last one is there are two premises of the value: going concern and liquidation. It's true. Next one. आप लोग लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर आप लोगों ने देखा है? हेलो किशन? Sir, I have not seen. You have not seen? Yes, sir. I will see. आप लोग को लास्ट ईयर क्वेश्चन भी करके क्या है, लास्ट ईयर क्वेश्चन करने से आपको पैटर्न समझ में आएंगे. ठीक है, कि क्या पैटर्न है क्वेश्चन का, एटलीस्ट आप वो देखो. ठीक है, अगर सपोज ये चैप्टर आज आपने कंप्लीट किया ना, ठीक है, अब क्या करना है आपको लास्ट ईयर क्वेश्चन देखना है. इट विल इंक्रीज योर कॉन्फिडेंस. ओके, कि कैसे एग्जाम में आप सरप्राइज ना हो जाके कि भाई कैसे क्वेश्चन पैटर्न आ गया. ठीक है, तो आपको क्या करना है, आप ये चैप्टर क्लोज हुआ तो आपको आज ही ये चैप्टर क्लोज करना है, पर्सनल. Yes, sir. Sure. Okay. Second, B, the space can value of a company flexibility to alter its initial operating strategy in order to capitalize on favorable future growth opportunity or to react as a mitigate losses, real option technique approach, DCF approach.
this type of question you have to check each and everything. Okay, आपको सारा कुछ ये जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, इट विल रियली हेल्प फॉर दैट. आपको ये चीज सारा कुछ चेक करते हुए आपको कवर अप करना है. तो हम एक बार ऐसे कर सकते हैं कि अगर अगर एक क्वेश्चन पूछूं मैं फिर से, मिसकंसेप्शन अबाउट द वैल्यूएशन, व्हाट आर द मिसकंसेप्शन अबाउट द वैल्यूएशन. आपको ये इम्पोर्टेंट है, आपको ये चेक करना है. ठीक है. एंड if I will ask process to minimize the valuation bias, anyone can tell what are the process to minimize the valuation bias? हमने बताया था ना कि अगर वैल्यूएशन बायस है, अगर पार्शियलिटी हो रही है तो उसको कैसे कम करेंगे. तो क्या करना है हमें, फर्स्ट पॉइंट, रिड्यूस इंस्टीट्यूशनल प्रेशर. ठीक है, रिड्यूस करेंगे इंस्टीट्यूशनल प्रेशर तो उससे क्या होगा, मिनिमाइज द वैल्यूएशन बायस होगा. सेकंड क्या बताया था मैंने, डीलिंक वैल्यूएशन फ्रॉम रिवार्ड एंड पनिशमेंट. अगर हम किसी को रिवार्ड दे के, ठीक है, किसी को हम लोग रिवार्ड दे रहे हैं, मैंने बताया था कि अगर किसी को 10% रिवार्ड दे के अगर आप वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी का कम करा के आप उसका बेनिफिट ले रहे हो तो दिस इज रॉन्ग, है ना. और या फिर कोई पनिशमेंट दे के आप कर रहे हो तो दिस इज रॉन्ग. ठीक है, तो क्या करना है आपको, उसको डीलिंक करना है, डीलिंक द वैल्यूएशन फ्रॉम रिवार्ड एंड पनिशमेंट. थर्ड बताया था मैं आपको, नो प्री कमिटमेंट. ऐसा कोई हमें पहले से कमिटमेंट नहीं होना चाहिए कि हमें ये वैल्यू की प्रॉपर्टी इतनी होनी चाहिए. ठीक है, क्योंकि एट ए टाइम जब आप वैल्यूएशन करने जाते हो तो मे बी that time the value of the property will increase or decrease. So pre-commitment, it really bad for that. Next one is that self-awareness. हमें खुद से अवेयरनेस होनी चाहिए कि अगर कोई someone is cheating, ठीक है, कोई चोरी करता है तो उसको खुद से पता होता है कि मैं कुछ गलत कर रहा हूँ. ठीक है, तो सेल्फ अवेयरनेस होनी चाहिए आप में कि मैं किसी के साथ पार्शियलिटी ना करूं. ठीक है, तो पार्शियलिटी नहीं करना है तो हमें क्या करना है, हमें अनबायस्ड वैल्यूएशन करना है. बायस मींस पार्शियलिटी होता है, अनबायस्ड मतलब विदाउट पार्शियलिटी मतलब फेयर. एंड 5, ऑनेस्ट रिपोर्टिंग. तो आई थिंक अगर आप 5-10 मिनट अगर और रिवाइज करना चाहो तो ये चैप्टर ये आपके लिए क्लोज हो जाएगा, so that it will easy for you itself. ठीक है, अगर आप बोलोगे 10 मिनट्स में और आपको रिवाइज करा दूंगा so that it यहाँ पे ही आपका ये चैप्टर क्लोज हो जाएगा. नो नीड टू गो इधर एंड इधर. और आपका ये कितने परसेंट मार्क्स कवर होते हैं इसमें एज ए सिलेबस, एनीवन? 50 मार्क्स नहीं, 50 मार्क्स ये फर्स्ट चैप्टर बेसिक्स, बिजनेस वैल्यूएशन बेसिक्स, फर्स्ट चैप्टर आउट ऑफ 4 चैप्टर. इसमें क्या वेटेज है, डिफाइन तो नहीं है बट ऑलमोस्ट 10 मार्क्स की होगी. हाँ, मैं यही बोल रहा हूँ, आज आपके 10 मार्क्स में ओवरऑल कंप्लीट करवा रहा हूँ. तो आप इनिशियली अब फिर से मैं 10 मिनट्स आपको फिर से रिवाइज कराऊंगा सो डैट कि बाद में आपको प्रॉब्लम ना हो और इससे आराम से आप मार्क्स गैदर करो. इट इज वेरी स्कोरिंग जो आप स्कोर कर सकते हो. ठीक है, तो इसमें 2-3 पॉइंट फिर से मैं रिवाइज कराऊं आपको. हेलो सर, बेसिकली एक EMH टर्म है सर, उसको एक बार टॉपिक को और डिटेल में करवा देते हैं. EMH एक्चुअली जो टॉपिक है वो रिलेटेड टू आपका कैलकुलेशन पार्ट इटसेल्फ है. ठीक है, तो वो किसी के ऊपर बेस्ड है. ठीक है, तो आई विल डिक्टेट ईच एंड एवरीथिंग इन द नेक्स्ट क्लास इटसेल्फ. ओके, other than you can okay, I will dictate if you interested for some. Efficient market hypothesis. Okay, efficient क्या होता है, efficient good. The purpose of any stock market of the world is to be bring together those people who have funds to invest with those who needs funds to undertake investment.
देखो इसमें क्या होता है, अगर आपको इन्वेस्ट करना है और मुझे क्या करना है, अंडरटेक करना है, दो टाइप के होते हैं। अगर आप, एक कोई इन्वेस्ट करता है, एक कोई अंडरटेक करता है। द पर्पस ऑफ एनी स्टॉक मार्केट, जो स्टॉक मार्केट में क्या होता है, ठीक है, अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो वो क्या करता है, अंडरटेक करता है। तो एंटिटीज विच सीक्स टू रेज इक्विटी आर आस्किंग इन्वेस्टर फॉर अ परमानेंट investment. Investor may not be incorrect to invest unless they are conceived that they have to be able to realize their investment at fair price at any time in future. इसमें 3 टाइप्स ऑफ इफिशिएंसी होती है। एक्चुअली क्या है, ये टॉपिक मैं आपको नेक्स्ट इसके बेस्ड है, ईएमएच का बेस मैं आपको नेक्स्ट क्लास में डिक्टेट करूंगा, जब हमारा इसका बेस और भी है कैलकुलेशन पार्ट में। जब आप नेक्स्ट डीसीएफ वगैरह अगर आपको पढ़ाऊंगा, डिस्काउंटेड कैश फ्लो एंड ऑल दिस, देन दिस वे विल कवर ईच एंड एवरीथिंग, सो एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग ओवर देयर। Okay, sure. And next, then I have a question for you. What is the difference between price and value? 2-mark question it may ask. Anyone? Price which company decide against a particular product, and valuation which covers a variety of things, not Price may be the amount of money. Tell me. सर प्राइस और वैल्यू दोनों डिफर कर सकते हैं। हाँ, कैसे? जैसे एक फैक्ट्री में कोई एक बड़ा पुराना पार्ट लगा हुआ है या बहुत पुरानी मशीन है, वो पूरा काम कर रही है, तो बिजनेस के लिए उसकी वैल्यू तो मतलब नई मशीन के बराबर है। लेकिन अगर हम उसको मार्केट में बेचते हैं तो उसका 1/4 हमें मिलता है, तो प्राइस उसका 1/4 हो गया और लेकिन वैल्यू उसकी 100% हो गई। क्या ये ठीक है? देखो, हम लोग एक वर्ड आता है डिप्रेशिएशन, ठीक है। हाँ, यहाँ पे डिप्रिसिएशन ऐड करूंगा, क्योंकि अगर आप कॉस्ट अकाउंटेंट होने वाले हो और इंटरमीडिएट हो भी गए हो, तो हम लोग क्या करते हैं, कोई मशीनरी हम लोग एज्यूम करते हैं, पीएनएल में डालते हैं कि भाई ये हर एक साल डिप्रिसिएशन हम लोग ऐड करते हैं, ठीक है। आपकी सही है कि मार्केट में ले जाएंगे तो उसकी वैल्यू ऑब्वियसली अगर आज 100 रुपीज है, तो मार्केट में अगर आप 4 इयर्स के बाद अगर आप देखोगे उस चीज का, तो जो डेप्रिशिएट करके 40-50% वाट एवर जो भी है, आप यही बोलना चाह रहे हो ना कि 50% वैल्यू मिलेगा, ठीक है। लेकिन हम पीएनएल में चार्ज भी तो कर रहे हैं, ये भी तो देखो। हम वो 50 अगर 4 इयर्स अगर आपने यूज किया है, तो 4 इयर्स आप उसका यूज भी तो किए हो। यूज करने के बाद उसका एक्सपेंस जो है, डेप्रिसिएशन एज ए डेप्रिसिएशन जो हम लोग ले रहे क्लेम कर रहे हैं, वो पीएनएल में चार्ज भी तो कर रहे हैं। तो ओवरऑल हम लोग यूज कर लिया, अगर मार्केट में सेल करेंगे तो ऑब्वियसली हमें कम ही मिलेगा, ठीक है। लेकिन सर कभी इसका अगर अपोजिट हो जाए तो इट विल विन विन सिचुएशन, अगर लैंड का होता है। नहीं, हाँ नहीं, मान लिया मशीन का डेप्रिसिएशन सारा खत्म हो गया, ठीक है, पूरा उसकी वैल्यू, बुक वैल्यू 0 आ गई, लेकिन मार्केट में उसकी वैल्यू 50% है, तो अच्छी बात है ना। तो इस सिचुएशन में क्या होगा? मतलब वो तो और अगर हम लोग रियलाइज करते हैं तो वो हमारे लिए बेनिफिट है, तो पीएनएल में प्रॉफिट हो जाएगा वो। अगर आप समझो कोई मशीनरी लेते हो, अगर आप 10 इयर्स आप उसकी लाइफ है, ठीक है। अगर ऑन अनएक्सपेक्टेड अगर 1 लाख का कोई मशीन लेते हो, तो 10 साल में वो 0 हो जाएगा, ठीक है। स्ट्रेट लाइन अगर आप देखो तो, ठीक है। लेकिन आप रियलाइज करोगे इसमें प्राइस 0 हो जाएगा, वैल्यू उसकी मतलब ज्यादा होगी, है ना? यही होगा ना? हाँ, उस समय उसकी तभी भी वैल्यू होगी। हाँ, मतलब प्राइस 0 हो गया लेकिन वैल्यू उसकी है।
हाँ, उसकी उस समय वैल्यू होगी ठीक। एज ए मार्केट। And one more question, what are the key areas of valuation measure in decision making? While valuation play a key role. Anyone? मैंने बताया है key areas of valuation, major area of decision making where the valuation play a key role. सब कोई बताएंगे एक एक पॉइंट so that it will be easy for each and everyone. First one, valuation of equity shares. Valuation of equity shares in primary, secondary, as well as derivative market. Very good. Second point. तीनों में सेकंड है प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ इक्विटी शेयर्स। थर्ड वन, थर्ड है कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग एंड टर्न अराउंड। अब हम टर्न अराउंड को जरा थोड़ा समझा देंगे। देखिए क्या होता है, कॉर्पोरेट को रिस्ट्रक्चर करते हैं हम लोग, ठीक है, और टर्न अराउंड, रिस्ट्रक्चर का एडवांस हो गया टर्न अराउंड, ठीक है। कभी आपकी कंपनी चल रही है, ठीक है, आपका बिजनेस है, तो क्या करते हैं, कभी कभी कॉर्पोरेट को रिस्ट्रक्चर करते हैं इन द सेंस, कभी क्या होता है कि हम जो एसएपी यूज करते हैं, पहले हम लोग क्या करते थे, ईआरपी करते थे, ठीक है, तो धीरे धीरे एडवांस फॉर्म। हेलो हेलो, हाँ, आई एम ऑडिबल ना। तो पहले क्या था, ईआरपी था, ईआरपी सिस्टम था, ठीक है, फिर आपने क्या किया, ईआरपी को चेंज करके आप एसएपी में आए, ठीक है, फिर उसके पहले भी था टैली जो कंपनी में यूज होती है, अभी भी होती है, फिर ईआरपी पे आया, ईआरपी से आपका आया एसएपी, आया एडवांस आया। तो हम क्या करते हैं, कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चर करते हैं। क्यों करते हैं, एज पर द करेंट सिचुएशन, अगर हमें मार्केट में सारा कुछ अपडेट करना है, ठीक है, मार्केट के अकॉर्डिंग चलना है। एसीपी के बेनिफिट ये है कि सारा कुछ, अगर आप लोग एसीपी पे कभी काम किए हो, एनीवन? हेलो, हाँ, तो क्या होता है कि वो एडवांस फॉर्म है, जैसे टैली है, टैली ईआरपी है, ठीक है, ये क्या है, अपनी कंपनी के अंदर ये, अगर आप जहाँ पे सपोज कोई मैन्युफैक्चरिंग का एग्जांपल लेता हूँ मैं, अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उसका फैक्ट्री है, ठीक है, मेन ऑफिस अलग है, तो क्या होता है, और जो परचेजर होते हैं वो अलग होते हैं, तो क्या होता है, जो पीओ जनरेट करता है तो फिर इनके पास आता है, तो मतलब ये स्ट्रीम लाइन हो जाता है। दैट वन वन वर्ड अगर मैं आपको बोलूँ, तो कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग आपका रीस्ट्रक्चर होके मतलब एक गुड वे में प्रेजेंट होता है। दैट्स इट। एनी मोर डाउट? नेक्स्ट वन, securitization and debt instrument. Next one is portfolio management and mutual fund. Kesri? Sumedha? Sital Menon? So long term, medium term investment decision. Mergers and acquisition, takeover, divestiture, disinvestment, capital budgeting, private equity investment, venture capital investment, strategic investors, financial investors, and others. तो बेसिकली क्या है, जो हम ये की एरियाज है, जब हम क्या करते हैं, मेजर एरिया जब हम डिसीजन मेक करते हैं कि हमें क्या है, वैल्यूएशन प्ले की रोल, तो दीज आर द पॉइंट वी हैव टू कंसीडर बिफोर डूइंग एनीथिंग एल्स। ओके, नेक्स्ट क्या है, फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट, डीसी क्या है, नेक्स्ट पढ़िए। नेक्स्ट है फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट डिसीजन।
And most important is that court case related decision. If any related to the court case, we have to consider for that. Tax related valuation including transfer pricing, development project valuation, equity research, forensic accounting and financial, dissolution of firm, insurance, product valuation, corporate planning, property valuation, and value based performance measurement. Okay. And the last one is, once again we will consider for the same, because this is very important for the exam point of view. So I will once again you have to discuss for the same misconception about the valuation. It will maybe come around 4 to 5 marks. What are the misconception about the valuation? So everyone tell me the one point so that it will conclude for the same. Chandrasekhar, Chetan, Kishan Kesri, Mr. Sharma, Milan, Sital, Sumiga, everyone one point dictate each and everyone so that it will be conclude and it will be easy for everyone to consider for 3 to 4 marks maybe come misconception about the valuation. It is very important. And first misconception is that the valuation is an objective search for a true value. Next one, who will read? And this is directly proportional to who pays for the assets being valued and how much professional fee is being paid to the valuers. Sir, second one is, since valuation models are quantitative, valuation is better. Right. Third one. A well researched and well done. Well researched and well done valuation tends to be timeless. Timeless. Next one, Mahit 4. A good valuation provides a precise estimate of value. ये objective type question may be asked. A good valuation provides a precise estimate value or not. Okay. So you can say a good valuation depend upon the precise estimate of the value. अगर valuation अगर biased होगा तो वो correct value नहीं आएगा, चाहे कोई भी हो, business हो, property हो, anything else हो या कुछ भी हो. A good valuation provides a precise estimate of the value. Next one. Rampa. ये myth 5. हाँ. To make money on valuation, you have to assume that markets are inefficient. Myth 6. The product of valuation, that is value, matters and not the valuation. Yes. Right. 7. मतलब वैल्यूएशन की उतनी वो नहीं है जितनी की उसमें प्रोडक्ट मैटर करता है. राइट. आई थिंक अब आप लोग को इजी लग रहा होगा, आई थिंक चैप्टर. क्या बोलते हो? हाउ मच बिजनेस. सर ओवरव्यू मिल गया है. हाँ, बस फिर से रीड करेंगे तो परफेक्ट हो जाएगा. हाँ, मैं वही बोल रहा ना, इतना ओवरव्यू दे दिया हूँ मैं आपको. कल एक बार आप खुद से रीड कर लोगे ना तो यू विल गोट रियली एटलीस्ट वट एवर 8-10 मार्क्स क्वेश्चन यू विल आस्क इन ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन, यू विल रियली कैच ऑन दिस. एंड लास्ट 2 मिनट मैं फिर से एक बार ये करूंगा स्टैंडर्ड ऑफ वैल्यू को. ये आप लोग ही आंसर दोगे, ठीक है, सो दैट इट विल close for the day and close for this chapter. And once again we will discuss 2 or 3 questions. Okay. Standard of value, this is also important. The standard of value, what is this? The standard of value allow all the merchant
and economic entities to set uniform price of goods and service. This standard is necessary in order to maintain a stable economy. मैं आपको इसलिए ये थ्योरी है, ठीक है, डबल रिवाइज कराया क्योंकि एग्जाम इज वेरी नियर, सो दैट यू विल एटलीस्ट इन ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव यू विल गेट द मार्क्स. ओके, तो आपको मैं ऐसे पॉइंट्स रिमेंबर भी करा दिया कि व्हाट 5 मोस्ट कॉमन स्टैंडर्ड ऑफ वैल्यू, सब एक साथ बोलेंगे. व्हाट आर द 5 मोस्ट कॉमन स्टैंडर्ड ऑफ वैल्यू? मैं नहीं बोलूंगा ये पॉइंट, अब आप ही लोग बोलोगे. What are the 5 most common standard of value? First one is fair market value. Very good. Fair market value, हम बोलेंगे fair market value is the price assets would sell for on the open market. ओपन मार्केट में सेल होगा, चाहे कोई भी ले, कोई भी परचेज करे, कोई भी सेल करे. इट इज वेरी फेयर, एज द नेम सजेस्ट फेयर. तो फेयर ईच एंड एवरीथिंग, सबके लिए फेयर है. प्रोस्पेक्टिव बायर हो, सेलर हो, आर रीजनेबली नोइंग अबाउट द एसेट्स बिलोंग टू इन देयर बेस्ट इंटरेस्ट, फ्री ऑफ अनड्यू. कोई प्रेशर नहीं है इसमें कि आपको इतने में बेचना है, उतने में बेचना है. फेयर वैल्यू फॉर ईच एंड एवरी पर्सन. सबको याद हो गया पॉइंट, ये पॉइंट? यस सर. किसी को कंफ्यूजन है? ये 5 मोस्ट कॉमन स्टैंडर्ड ऑफ वैल्यू में फर्स्ट पॉइंट आता है फेयर मार्केट वैल्यू. ठीक है, फेयर मार्केट वैल्यू आप ऐसे इसको याद कर सकते हो कि फेयर मार्केट एज द नेम सजेस्ट, फेयर मार्केट वैल्यू, फेयर टू एवरीवन, परचेजर, सेलर इन द ओपन मार्केट, प्रोस्पेक्टिव बायर हो, सेलर हो, रीजनेबली नोइंग अबाउट एसेट्स बिलोंग इन बेस्ट इंटरेस्ट, कोई अनड्यू प्रेशर नहीं होता है. ठीक है, इन ए रीजनेबल टाइम पीरियड फॉर कंप्लीटिंग द ट्रांजेक्शन, इसमें कोई कुछ नहीं होता है. सेकंड मैंने बताया था, बताइए सेकंड कौन बताएगा एक्सेप्ट मिस्टर शर्मा को छोड़ के? अब नेक्स्ट कोई बताएं. वेरी थैंक यू मिस्टर शर्मा. ओके सर, थैंक यू. Sir, second one, investment value. बताएं इसके बारे में. इन्वेस्टमेंट वैल्यू में क्या करते हैं हम लोग, क्या हम लोग सोचते हैं? इन्वेस्ट, अगर हम लोग कहीं इन्वेस्ट करते हैं तो क्या क्या सोचना होता है? हम कहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं, अगर सपोज आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो आप क्या सोचोगे कि हमें इन्वेस्ट करना चाहिए, यहाँ पे नहीं करना चाहिए? क्या 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 पॉइंट आपके माइंड में आता है बिफोर इन्वेस्टिंग? बताएं. Sir, मैं उसका बताता return. हूँ. हाँ बोलिए 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 बोलिए. हाँ मैं तो बता दिया, मैं आपसे बोलूँ. बताएं. सर उसके रिटर्न्स अच्छे आने चाहिए, कुछ टैक्स Very good. बेनिफिट्स क्या, और वेरी गुड. वॉल्स रिस्क इन्वॉल्व है. वेरी वेरी गुड, वेरी राइट. एक्चुअली हम कहीं भी इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है, तो हम एज द नेम सजेस्ट कि इन्वेस्ट अगर कर रहे हैं तो रिटर्न आना चाहिए. हम परचेज और सेल नहीं कर रहे हैं, हम परचेज नहीं कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं? इन्वेस्ट कर रहे हैं. ठीक है, अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हमें रिटर्न आना चाहिए. रिटर्न कब आएगा? हम क्या देखेंगे? उसकी कैपेबिलिटी देखेंगे. ठीक है, क्या रिस्क है वो देखेंगे कि भाई इतनी रिस्क है, इसमें इतने रिटर्न आ सकते हैं या नहीं आ सकते हैं. ठीक है, ये सब सारा पॉइंट हम लोग कंसीडर करते हैं. फॉर दिस रीजन इन्वेस्टमेंट वैल्यू में रिजल्ट हायर वैल्यू देन फेयर मार्केट वैल्यू. तो और नेक्स्ट पॉइंट बताएं. नेक्स्ट एनीवन? इंट्रिंसिक वैल्यू. राइट, इंट्रिंसिक वैल्यू और फंडामेंटल वैल्यू. हाँ बताएं. ये value that an investor considers on the basis on evaluation or available facts to be true or real value that will become in future the market value when investors reach the some conclusion. वेरी गुड. इसमें you यही can जो say है इंट्रिंसिक वैल्यू बाद में मार्केट वैल्यू बन जाएगी जब कोई उसका खरीदने वाला आ जाएगा. very good. In simple term you can say that calculate the simplified assumption. Intrinsic value option based on current market value of the underlying instrument, ignoring the possibility of future fluctuation. हम लोग future fluctuation को इसमें क्या करते हैं? Ignore करते हैं. That's it. Next one. Fair value. Fair value. Fair value. Very good.
इसमें कुछ The पॉइंट price बताएंगे? that would be received, the price that would be received to sell an asset or paid to transfer a liability in order to transaction between market participants at the measurement of date. So here the measurement of date is important for the fair value. The fair value a standard of value understand differently in the two situation in legal matter in financial reporting purpose. That's great. Next one. सर इन दोनों में ये अलग अलग कैसे हो जाएगी, मतलब ये थोड़ा क्या? समझाना है। होगी तो अलग ही हाँ लीगल मैटर में और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पर्पज में। तो हाँ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पर्पज में बुक वैल्यू होगी हाँ और लीगल मैटर में एक्चुअल वैल्यू होगी, हाँ है यही अंतर होगा ना सर? राइट राइट। एंड ठीक। नेक्स्ट लास्ट वन। Market value. Under that we have covered chapter 1. Okay, in the valuation chapter itself we have covered so far basis of valuation, principles and technique of valuation, role of valuation. After that from the next class we'll cover 3 more chapters, and meanwhile you have to study a lot today itself what we have discussed today. I think you will enjoy this class, and this is a two-way class actually. I don't think मैं one way class नहीं रखना चाहता था, two-way class, so that it will be easy for you and me also to discuss the same thing, and it will help to really in exam purpose itself. Okay, and you have really give time to the study right now in each and every subject seriously, and अभी जो कैसे ऑनलाइन एग्जाम हो रहे हैं तो आप लोग क्या सेंटर चूज किए हो या फिर घर पे पेपर दे रहे हैं? I think, sir, further notification will be issued by the institute in this regard. Okay, अभी तो कुछ फाइनल नहीं हुआ ना? Yes, sir. नहीं सर, अभी फाइनल नहीं हुआ। अभी व्हाटएवर जो भी है आप लोग, मुझे लगता है सर ये जो एनटीए वाले या एसएससी वाले सेंटर हैं उन्हें ही चूज करेंगे, क्योंकि वहीं पे कंप्यूटर होते हैं। हाँ, जो पुराने सेंटर हैं वो शायद खत्म हो जाएंगे। क्यों? क्यों पुराने सेंटर में, हर सेंटर में तो कंप्यूटर नहीं होंगे ना उतने। हाँ वो तो है, क्योंकि ये जिस टाइप का पैटर्न हमने देखा है सर, इसका इंटरमीडिएट का कुछ उस पे आया है, वही सेम पैटर्न इसमें यूजीसी एनटीए में यूज होता है। ओके, वो वही पैटर्न है। तो पैटर्न इसके चेंज लिए हुआ क्या इंटर के लिए? हाँ, उसमें वेबसाइट पे इंटरमीडिएट का दिया हुआ है। किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे उनको रिवाइज कर सकते हैं, बीच में छोड़ सकते हैं, फिर बाद में दूसरे क्वेश्चन पे जा सकते हैं, ऐसा कुछ उसमें है। अच्छा अच्छा, नॉर्मल वैसे जो रहता है वो मतलब कंप्यूटर का माउस यूज करके उसको मतलब आप स्किप करके आगे भी जा सकते हो, ऐसा करके है। फिर उनको बाद में अटेम्प्ट कर सकते हो। व्हाटएवर वो तो आपको गाइड करने के लिए वहाँ पे होंगे, बट बेस्ट पार्ट इज दैट यू हैव टू प्रिपेयर फर्स्ट ईच एंड एवरी पॉइंट। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आए तो आपके लिए बहुत बढ़िया है, सब्जेक्टिव आए तो थोड़ा आपको एनी हाउ आपको पढ़ना तो पड़ेगा, है ना? तो इसमें नहीं, उसमें कुछ इस टाइप का है कि एक क्वेश्चन दे दिया, उसी में से फिर नीचे 4-5 क्वेश्चन पूछ लिए छोटे छोटे ऐसे करके। अच्छा हाँ, ऊपर एक क्वेश्चन बना दिया, फिर उसमें से छोटे छोटे क्वेश्चन नीचे पूछ लिए। अच्छा, जैसे रीजनिंग वगैरह में क्वेश्चन आते हैं। हाँ, मतलब एक पैरा दे दिया, उसमें पैरे में से मतलब जैसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं, कुछ इस टाइप के देखे हैं मैंने। मतलब उसमें क्वेश्चन तो वही हैं सारे। तो हाँ तो ठीक, देखो देखा है इसका, सीएमए इंटर का देखा है, उसमें दिया हुआ है।
खैर आप लास्ट ईयर क्वेश्चन सजेस्टेड क्वेश्चन आंसर आप लोग देखना, और साथ में ये जो मॉड्यूल है वो देख लेना। इट विल बी इनफ फॉर दैट, क्योंकि अब आपके पास ज़्यादा और टाइम नहीं है कि अदर बुक आप रेफर करो। ठीक है, तो बेस्ट वे कि आप इंस्टीट्यूट का जो मॉड्यूल है और लास्ट ईयर क्वेश्चन ये है सफिशिएंट। अगर आप इनको देख लेते हो तो इट विल रियली हेल्प फॉर द एग्जाम पर्पस इटसेल्फ। और पैटर्न कैसे भी आए, आप जो पढ़े हो, जो टॉपिक है, मैंने इतने बार पढ़ा दिया एक चैप्टर को, आई थिंक इट विल बी रियली हेल्प टू यू कि आपका कोई भी क्वेश्चन आए, इसमें ऑब्जेक्टिव आए या सब्जेक्टिव आए, यू विल कवर फॉर दैट, नो प्रॉब्लम। तो सर अभी हमारी कितनी कितनी क्लास होंगी? आपकी क्लासेस अभी नेक्स्ट थर्सडे को होगी क्लास, नहीं, नेक्स्ट वीकेंड। टोटल मतलब और कितनी होंगी? टोटल आपकी क्लास अभी होगी, देखिए ये मंथ में आपका एक क्लास रह गया आएगा, ठीक है। हाँ, एक सेकंड मैं आपको बताता हूँ। ये मंथ में लास्ट आपका थर्सडे को क्लास होगा 29 को, ठीक है। फिर नवंबर में आपका क्लास होगा, 4 थर्सडे है, 4 थर्सडे है, 5, 12, 19 और 16। अच्छा, ठीक है। और फिर आपका फर्स्ट तो मतलब टोटल नेक्स्ट मंथ में आपका क्लासेस होगा 6 क्लास, ठीक। 6 क्लास होगा। और आपका अभी 3 चैप्टर और रह गया है ना? हाँ, 3 चैप्टर हैं, बड़े बड़े सेट होंगे वो। 3 चैप्टर है तो कोई बात नहीं, 3 चैप्टर है तो वो भी कवर करेंगे जैसे अभी किया है, ठीक है। हाँ, हाँ। तो बस आपको ये करना है कि आपको पढ़ाई करनी है सबको, जो भी है। अभी ज़्यादा टाइम है नहीं हम लोग के पास, ठीक है। तो जितना है ठीक। टाइम अच्छे से कंट्रीब्यूट करना है और उसको रिजल्ट देना है इसमें। Then we will conclude here itself. ओके आपको कुछ क्वेश्चन जो लास्ट ईयर है वो आप चेक करते रहना, रिवाइज करते रहना, क्योंकि लास्ट ईयर क्वेश्चन आपको रियली हेल्प करेगा, ठीक है, आगे एग्जाम के लिए। और आप अभी जितना रिवाइज करेंगे, जितना पढ़ेंगे, और वो बेटर होगा आपके लिए, ठीक है। तो वी विल मीट ऑन नेक्स्ट क्लास and we'll cover next chapter. Okay, thank you. Okay, sir. Thank you. Thank you. Thank you. Hello. Hello. Hello.